While fertility is about science, it is about medicine. It is also at the cusp of something which is deeply emotional and personal. Having a child is not just about having a child. It's about creating something, creating harmony, creating balance and बहुत सारी चीजें जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई है वो सब चीजें उसके साथ में चलती. There are immense red flags. Pardon me for saying this. Yeah. But there are red flags around. That is a reality. You have done the treatment. पर ट्रीटमेंट के कोई भी पेपर करेक्ट वे में आपको दिए नहीं गए, ट्रीटमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, आपके डॉक्टर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं है कि क्यों सक्सेसफुल नहीं गई. The effect of these things on fertility. Using laptop. यस. Welcome to the show, Start Your Enjoyment. मेरा नाम है Kena and I'm a writer, storyteller and a seasoned HR. Today is an extremely important day for us. Very important. पता है क्यों? क्योंकि साइंस और मेडिसिन तो एक तरफ है, पर उसके साथ जुड़ी हैं बहुत सारी कहानियां जो हमारे इमोशंस में हमारे अंदर सीप करती है. इंपॉर्टेंट स्टोरीज, डीपली स्टोरी, पर्सनल स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट fertility, stories about bringing a child to life, stories about IVF. And who better than Dr. Varun Shah, who joins us today in this conversation. He's a renowned gynecologist, urologist, a fertility care expert. He's the director and chief consultant at Inception IVF Mumbai and very popular on Instagram. Sir has an experience of over a decade. He has treated more than 2,500 couples, which means more than 2,500 stories rest with him. Stories of resilience, hope, faith, and coming back with a lot of courage. तो आज करेंगे उनसे बातचीत. उनकी अवार्ड की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि अगर हम यहाँ सुनाते रहे तो आप सुनते रह जाएंगे. But let us straight away move to this extremely important conversation, which is on the cusp of science and being human at the same time. Welcome, Dr. Shah. Wow, thanks a lot. Such a pleasure that you're here with us today. Absolutely. और ऑनेस्टली आपको देखो तो ऐसा लगता है ना आप हमारे डॉक्टर हैं, आप पब्लिक के डॉक्टर हैं. यू नॉट दोस वन ऑफ दोस डॉक्टर्स जो बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं. आप हमें अपने लगते हैं. तो आज जो आपसे बातचीत होगी बिल्कुल दिल खोल करके हर वो सवाल पूछे जाएंगे जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे कोई और पेशेंट पूछने में 4 बार हिचकेगा. I would be very happy to answer those questions. तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि while fertility is about science, it is about medicine. It is also at the cusp of something which is deeply emotional and personal. किसी बच्चे को अपनी जिंदगी में लाना और उसको वेलकम करना. कुछ ऐसी कहानियां होती है ना जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं ओपनली. वेडिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया. पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पर्सनल है. वी टॉक अबाउट इट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस and there's hardly anybody to answer it properly, correctly. These are the stories we carry within ourselves. And for some people, bringing a child to life may be a dream. But for some, it is a test of time. Absolutely. It is about a lot of weight, a lot of courage, and a lot of resilience. So, aapne, while you're a gynecologist and a urologist, you've chosen something which is at the cusp of both. Why this? थोड़ा स्टोरी शुरुआत से शुरू करना है. Yes. तो बहुत कम लोगों को पता है कि my father is also a gynecologist Mm-hmm. and he's practicing in a town called Palanpur in Gujarat. Oh. And when I was growing up, obviously, Mm-hmm. I used to see him. And बहुत बार ऐसे हुए कि जब हम छोटे थे, we used to go in his clinic, sit in front of him, and he used to see patients in front of us. And तब धीरे धीरे समझा कि कैसे patients आते हैं. And even though he was not practicing IVF, he had great fertility practice at that point of time. Mm-hmm. And तब देखा कि यार जो लोग नॉर्मली प्रेग्नेंट होके आते हैं उनके इमोशन लेवल्स एंड जो लोग एक्चुअली फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उनके इमोशनल लेवल में जमीन आसमान का फर्क है. दूसरा कि जब सच में उनको रिजल्ट्स मिलते हैं या कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो उनकी खुशी 2 गुनी 4 गुनी नहीं 10 गुनी होती है. तो ये चीज दिमाग में बैठ गई कि भाई कुछ भी करना है पर ऐसा करना है कि लोगों की लाइफ में मेजर चेंज ला सको. एंड आफ्टर द गायनेकोलॉजी दैट वाज द प्लान. सो आई परस्यूड माय फर्टिलिटी करियर अकॉर्डिंगली, got all the possible training and degrees which I wanted, and then I started my journey.
How lovely is that? Sometimes, life doesn't have grand plans. Yes. This one simple conversation, a single moment, a single person brings about a change in direction. आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा केस देखा या शुरुआती दौर में कुछ ऐसा वाकया आपके साथ हुआ जिसने आपको डायरेक्शन दिया कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, इट हैज अ बिगर पर्पस? Yes. So it dates back to my residency days, where जब मैं गायने के लिए पढ़ रहा था, ओके. तो मुझे याद है कि एक 4 लोग एक साथ कंसल्टिंग में आते थे और उसमें से द गर्ल हु वाज ट्राइंग टू हैव अ बेबी, और बाकी के जो 3 लोग थे ना उसके भाई थे. सो उसके हस्बैंड उसके साथ में नहीं आते थे, एंड एवरी टाइम आके यही प्रॉब्लम सामने गाते थे कि भाई डॉक्टर कुछ भी करके इसको बच्चा हो जाए, अगर बच्चा नहीं हुआ तो इसका मराइडल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा. और ये एक ऐसा केस था कि जिसमें हम लोग को बहुत एफर्ट लगा. इवेंचुअली शी गॉट प्रेग्नेंट एंड देन एवरीथिंग वेंट वेल, ओके. बट इट वाज लाइक अ 6-7 months जर्नी. एंड दैट 6-7 month जर्नी में जो पेशेंट का और उसके परिवार का जो मेंटल टर्मोइल हम लोग ने देखा, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी एज वेल. कि भाई कुछ भी करो पर ऐसे ऐसे चीजों को आपको करेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज हैविंग अ चाइल्ड इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ चाइल्ड, इट्स अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएटिंग हार्मनी, क्रिएटिंग बैलेंस, एंड बहुत सारी चीजें जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई है वो सब चीजें उसके साथ में चलती. तो एंड अभी भी अपना समाज ऐसा है कि ये सारी चीजें टैबू है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड स्पेसिफिकली फीमेल्स के ऊपर उंगलियां उठी जाती है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग. सो या तो वैसे केसेस में इट इज इम्पोर्टेंट, बीइंग अ वुमेन्स डॉक्टर, यू हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले वुमन की लाइफ बेटर हो जाए. क्या बात है. This is so beautiful. Okay, because we are starting this conversation, let's start with hope. So imagine that you're in your clinic, आप बैठे हुए हैं, एक couple अंदर आता है. This couple has been trying for weeks and months and years, and that they've tried everything, and they are at a point जब उन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं होगा. They reach your table, and you have some news for them. बढ़िया वाला news. Please explain that moment. So normally Uh. when I know that they are pregnant, I call them at a point that I can actually confirm the pregnancy through sonography, Okay. because it gives them the great visual Oh pleasure, my God. right? So I always make sure that I call them at a time कि जब मैं sonography से उनको confirm कर सकूं. तो जब आते हैं, we just generally talk how she is and all. Then I take her to the examination and we do the sonography. And वो sonography में जब पहला heartbeat सुनाई देता है ना, तब I always make sure कि मैं husband और wife दोनों का face देखूं. Invariably, I have seen husbands crying more Oh. than the female. Yeah. But this is like priceless. I completely get it. I'm a mother of two. And trust me, sir, जैसा आप बोल रहे हैं ना, वो जो विजुअल है ना, अभी भी आप बात कर रहे थे, and sudden वो फ्रेम नहीं जाता है, वो जिंदगी Yes. के दिमाग से वो फ्रेम नहीं जाता है. Yes. That's such a lovely way to. Yeah, and that's for a speciality, it's so rewarding. I know. As you said कि वो लाइफ टाइम नहीं जाता है, सो वो लाइफ टाइम आपके डॉक्टर वो भी याद रखने वाले हैं. करेक्ट. पर अब हम ना उस पे आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है सर. Yes. मतलब आप सबको आईवीएफ के बारे में बताएं. आई बिलोंग टू द जनरेशन ऑफ मिलेनियल्स, एंड समहाउ फ्रॉम आवर जनरेशन वी आर अ वोक जनरेशन. जेन ज़ी तो और भी ज्यादा वोक है. एवरीबॉडी नोज अबाउट आईवीएफ. कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, चल रही है, बढ़िया चल रही है. We have celebrity interviews, those big words that we hear from people of authority. Then we have lot of access on internet. सबको पता है, लेकिन सड़क पे चलते हुए किसी से रोक के पूछो कि प्लीज एक्सप्लेन आईवीएफ, नहीं पता है. नहीं पता है. And I'm also guilty of it. If you ask me कि इसके बारे में डिटेल्स बताओ, no, I do not know much about it. But I would like to. तो प्लीज बताइए कि क्या है. ऐसे बताइएगा ना सब कि कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के मेरे घर में जो हाउस हेल्प आती है, उन सब के लिए आसान हो जाए. So, in a very simple language, एक जो ह्यूमन बायोलॉजी हमारा ऐसा है कि भाई फीमेल का जो एग है, स्त्री बीज जिसको बोलते हैं, जी जी. वो हमेशा बॉडी के अंदर ही रिलीज होता है. और प्रेगनेंसी होने के लिए एग और स्पर्म का मिलना जरूरी है. जी. राइट. स्पर्म माने पुरुष बीज, एग माने स्त्री बीज. राइट. आईवीएफ में खाली एक ही चीज जो अलग होती है
कि बायोलॉजिकली जो एग बॉडी के अंदर रिलीज होता है वो उसको अंदर नहीं रिलीज होने देता, बॉडी के बाहर निकलते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे मिक्स कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको ही आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बोलने में बहुत सिंपल है, जी, राइट, पर करने में थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं हमारे। क्यों स्टेप्स बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो एग बनाने का प्रोसेस है इट्स नॉट अ 1 डे 2 डे का प्रोसेस, इट टेक्स लाइक 10 to 14 days टास्क। यस, और वो 10 to 14 days के लिए अ वुमन हैज टू टेक हॉर्मोन्स। या क्यों? क्योंकि हार्मोन अगर लेगी तो ही एग्स डेवलप होंगे इन अ वे कि हम उसको कंट्रोल कर पाए। ओके, कंट्रोल करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो एक बॉडी के अंदर ही रिलीज हो जाएंगे और आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, राइट। सो दिस इज अ बेसिक ऑफ आईवीएफ। एक बार एक बॉडी से बाहर आया, फर्टिलाइज किया, उसमें से एक इंक्यूबेटर करके मशीन होता है जिसके अंदर वो ग्रो होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उसको 5 दिन तक बड़ा करते हैं बच्चे को, जिसको एम्ब्रियो बोलेंगे अभी। और वो एम्ब्रियो को फिर हम लोग यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड वंस वी डिपॉजिट इनसाइड द यूट्रस, उसके 12 या 14 दिन में अपने को प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो मिल जाता है। सो ये प्रोसेस को हम लोग आईवीएफ बोलेंगे। एंड बिकॉज आपको वो एम्ब्रियो बनाना है तो इसी रिपीट ट्रायल्स इसके होते रहते हैं कि कौन सा वाला स्पॉट ऑन हो जाए। यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज बायोलॉजी अगेन ऐसी है कि बहुत सारे एग्स ऐसे आते हैं कि जिसमें से एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो पाता है। तो जनरली गुड एग किसको बोलते हैं? तो जब हम लोग एग बॉडी में से बाहर निकालते हैं तो 8 से लेके 15, दिस इज द नंबर, कि उतना अगर एग आपको मिलता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड नंबर ऑफ एग। और जब इतना एग आपको मिलता है तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% जितने बेबीज फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स कि समझो कि 10 एग्स आपके हाथ में आए हैं, उसमें से 4 बेबी फॉर्म होंगे। दिस इज हाउ द बायोलॉजी वर्क्स, राइट? इट इज नॉट 100% काइंड ऑफ अ बायोलॉजी, राइट? तो और वो जो 4 आएंगे उसमें फिर अल्टीमेटली वी डू सम काइंड ऑफ अ क्वालिटी असेसमेंट और उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी अपने को दिखता है वो ही हम लोग यूट्रस के अंदर डालते हैं। इज इट वेरी पेनफुल? नो, इट इज नॉट। इनफैक्ट ये बहुत सिंपल आंसर नहीं है आंसर करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मैं गिर गई, मेरे को लग गया और पेन हो गया, ऐसा है नहीं। इट हैज 2 कंपोनेंट, वन इज तो फिजिकल कंपोनेंट एंड सेकेंड इज द इमोशनल कंपोनेंट, राइट? और मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा लगता है कि इमोशनल कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए देर आर फ्यू फीमेल्स हु फील मोर अबाउट इट एंड देर आर फ्यू फीमेल्स हु डू नॉट। बट जनरली अगर एकदम एब्सोल्यूट सेंस में बात करेंगे तो जो भी इंजेक्शंस लेंगी कोई वुमन या तो कोई भी प्रोसीजर होगा इज फेयरली पेनलेस एंड उसका इतना बड़ा फिजिकल इम्पैक्ट नहीं है, सो दैट वी वुड नॉट टर्म इट एज अ पेनफुल प्रोसीजर। यस, बिकॉज ऑफ द इमोशनल बैगेज यू मे फील कि ये थोड़ा पेनफुल हो जाता है, बट इट इज अ लेंथी प्रोसेस एंड बिकॉज इट इज अ लेंथी प्रोसेस आपको फॉलो अप्स लगते हैं, आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट accumulation it gets heavy on your head. So as a doctor, although doctor's job is entirely to focus on science and the medicine part of it, पर आप तो लोगों की डॉक्टर हैं. yes, Do you ever have to manage expectations that patients bring to you also? वो जो डिसअपॉइंटमेंट लेके आते, क्या है ना, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो एक तो उसके पास एक एनवेलप होगा जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे, डायग्नोसिस, स्कैन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और एनवेलप होता है जो लोगों को नहीं दिखता, उनके फेस पे होता है। जो उनके फेस पे होता Face पे है, होता है। डिसअपॉइंटमेंट, Yeah. फैमिली का प्रेशर, अनसर्टेनिटी, अब क्या होगा, हाउ पेनफुल, हाउ बैड, विल इट हैपन, वोंट इट हैपन, एंड यू सी बोथ, हाउ डू यू मैनेज दैट? सो मेरे हिसाब से क्लिनिकल पार्ट मैनेज करना इजी है क्योंकि कोई भी कर सकता है। इम्पोर्टेंट वही है कि आप उस द इमोशनल बैगेज के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उसको कैसे मैनेज करते हो। एंड एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर योर जॉब इज नॉट ओनली टू मैनेज द पेशेंट क्लिनिकली बट टू काउंसिल not the patient it herself but the husband, patient and sometimes the family as well to a point कि उनको एक होप बनी रहे। सबसे पहली बात, उनके जो प्रॉब्लम्स है इमोशनली जो भी वो लेके आए हैं उसको एड्रेस किया जाए एंड
एक जात का मोटिवेशन बना रहे सो दैट दे कीप ऑन गोइंग. Hmm. Why it is important is because when you say that they've come with certain files, that means they have already done some treatments which has not been successful for them. And आप हो, मैं हूं, या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इफ यू गेट रिपीटेटिव फेलियर्स इन समथिंग विच यू आर ट्राइंग टू अचीव, आपका मोरल डाउन होने ही वाला है. So as a doctor, the primary job is that how to keep their moral high, how to keep their hopes alive, and how to give them a realistic picture of where they are standing, an actual percentage of chance that what they are going to get. The problem really arises when patients have unrealistic expectations, and as a doctor, you also don't tell them that what is the reality. So this is where the real problem starts. Have you come across couples जिसमें एक पार्टनर तो बहुत ही डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है, पर दूसरा वाला स्ट्रेस है, एकदम impatient, and this person is not getting enough cooperation from the partner? Do you remember a situation like that? एक्चुअली ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, डे इन डे आउट वाला. तो इसमें एक कपल नहीं होगा, मतलब इनफैक्ट आज के दिन में मैं 2 कपल ऐसे देख के आया हूँ कि जिसमें सेम सिनारियो है कि हस्बैंड इज लाइक रियली इम्पेशेंट एंड वाइफ इज लाइक मुझे नहीं करना है, वैसा टाइप का. सो ये होने ही वाला है. But ultimately what we do as a clinician is, because sometimes it gets really difficult for them to take some decisions right in front of us. So we just give all possible information. If they want some kind of emotional support, we provide them, and then we'll just leave the decisions to them. कि भाई आप husband wife एक बार शांति से घर पे जाकर डिस्कस कर लो, what do you want to do, and then you decide and you let us know कि क्या करना है. उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. And in my experience, this works almost every time. Oh. But आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें you had to refer the person to a psychologist or a counselor because एक अलग level of emotional support चाहिए? Yes. 2 months back, there was a female who had come to me, and she had come with her family, and they got all the reports, and there was a history of total 4 IVF failures. Yeah. 4 IVF failures. And when we counseled her, we saw her case, we understood कि क्या-क्या करने लायक चीज़ें हैं. पर कभी-कभी क्या होता है कि आप जब पेशेंट का फेस देखते हो, उसकी आंखें देखते हो, आपको समझ जाता है कि दे आर नॉट बाइंग इट, दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, दे आर जस्ट हियर बिकॉज समबडी हैज फोर्स्ड देम टू कम हियर. और ऐसे होता है. तो इवेंचुअली व्हाट आई डिड वाज दैट सेपरेटली उसको मैंने एक बार अपॉइंटमेंट में बुलाया. आई ट्राइड टू आस्क हर कि क्या है सिचुएशन, एंड आई अंडरस्टूड कि वो पेशेंट ने जो 4 IVF किए थे उसमें से 3 IVF में मेडिकेशन ही नहीं लिया. Yeah, the reason was that there was some issue between husband and wife, and the family was not aware about it. Husband was not speaking about it. I had to refer the entire couple to a psychologist कि भाई पहले ये sort out करके आओ, बाद में अपन करेंगे जो करना है. My God, you really have it up, John. Really have it up. Which also brings me to another point. As a couple ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली क्लिनिक जो है वो मेरे लिए ठीक है या ये वाला डॉक्टर मेरे को जाना चाहिए? There are immense red flags. Pardon me for saying this, Yeah, but there are red flags. that is a reality. So ये आंसर को भी 2-3 पार्ट में क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में हम लोग आंसर करने का ट्राई करते हैं. सबसे पहले तो समझो कि आप एक लोकेलिटी में हो XYZ और आप वहां पे ही हो, तो ऑब्वियसली आपको वर्ड ऑफ माउथ नाम की एक चीज होती है. सो यू कीप ऑन गेटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम योर फ्रेंड, फैमिली. तो और आपको पता है कि भाई 4-5 लोगों ने आपको रेफरेंस दिया है एक सर्टेन डॉक्टर का फॉर सर्टेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. दैट मीन्स कि वो डिसेंट काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, और देयर इज काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी इन देयर क्लिनिक. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि समझो कि आप वो लोकेलिटी से नहीं हो. लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम बैंगलोर एंड यू मूव टू मुंबई, right, for work purposes, and you have these issues and you want to find a clinic. Generally लोग क्या करेंगे, गूगल करेंगे, right? और गूगल पे you see the reviews and all. In fact, I am not against it. Okay, I am for it. Yeah, no, it's okay. But then there are so many people who have like put really genuine reviews. तो आप पढ़िए,
आपके घर के आजू बाजू या जहाँ पे भी है, थोड़ा टाइम निकालिए, रिसर्च करिए, रिव्यूज पढ़िए। सोशल मीडिया का टाइम है, इंस्टाग्राम है आपके पास, फेसबुक है, उसके जाके आप सर्च करिए कि क्या है, एंड देन इवेंचुअली आई वुड से कि यू विजिट 2-3 प्लेसेस। ऐसा नहीं कि भाई एक जगह पे चले गए तो मतलब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यू विजिट 2-3 प्लेसेस। जब आप कोई भी क्लिनिक पे जाते हो तो आपके आजू बाजू भी कुछ लोग बैठे होंगे और वो क्या बात कर रहे हैं सुनो, वहां पे रिसेप्शन पे जो स्टाफ बैठा है वो क्या बोल रहा है सुनो। आप पहले खुद से ये बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने समझो कि कोई क्लिनिक डिसाइड कर लिया है और तो समझो कि आपको पहले एक्स कॉस्ट बताया गया, जी। and then eventually they are asking a y cost and there is a gross difference between two, and it was not given you on paper. Also, for example, you have done the treatment, but treatment के कोई भी पेपर करेक्ट वे में आपको दिए नहीं गए, ट्रीटमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, आपके डॉक्टर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं है कि क्यों सक्सेसफुल नहीं गई, दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू मी आर द रेड फ्लैग्स। फिर चाहे वो ब्रांडेड क्लिनिक हो या अनब्रांडेड सोलिटरी क्लिनिक हो, ये सब चीज़ें आप देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है, इट इज़ टाइम टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। This was absolutely brilliant. आपने वो जो बात बोली ना, that every person has the right to information. ये शायद कहीं ना कहीं हक भी बनता है कि अगर हमारे साथ ये चीजें हो रही तो हमें बताई जाए। Absolutely. हाँ, And I'll add one more yes, point. yes. As a patient, बहुत बार ऐसा होता है कि you're not successful in the treatment. I'll talking about myself, my clinic. पर you have to own it as a doctor, कि आपको पता होना चाहिए कि ये फेल हुआ है तो आपको उसके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हुआ है। Invariably, I ask this question to the people who come with some other files that आपके डॉक्टर ने आपके साथ डिस्कशन किया है कि ये क्यों ऐसा? सर हमको कुछ बताया नहीं है। भाई बताया नहीं है तो वहां पे रुकने का कोई सेंस भी नहीं था। My God. मतलब इस पे क्या ही बोलना है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कितना आराम मिलता है, कितना सुकून मिलता है इस बात से। सी गेटिंग थ्रू इट इज नॉट द ओनली point of consideration. How did we reach there is also something that we need to discuss. In fact, among ourselves, we talk कि what is the real achievement of an IVF specialist? आपके फेल हुए पेशेंट्स अगर आपको दूसरे फर्टिलिटी पेशेंट रेफर कर रहे हैं ना, वो आपका रियल अचीवमेंट है। बात है, क्या बात है, वाओ, वेरी वेरी हार्ड। एक और चीज आपसे ये पूछनी थी कि आजकल ना ऐसा लगता है, इफ आई गो टू द जिम आई हैव वेरी गुड लाइफस्टाइल, 0-35, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं, देन आई एम 100% फर्टाइल। इज इट ओके या हमारी बॉडी कुछ ऐसे अर्ली साइंस या सिम्टम्स देती है व्हिच आई थिंक जनरली सबको पता होना चाहिए? तो थोड़ा इसमें करेक्शन कर ले। तो एज का फैक्टर है इसमें। There is something like a biology. There is something like biological clock. So I would put it not below 35, I would put it below 32. Yes. Yes. So तब जाके मैं ऐसा बोलूं। बोलती कब कोई मिनी हार्ट अटैक आया, Right. मैंने करना क्या फिर आप हाँ, so yes, so yeah, if you are less than 32, you're regular in your food, you're not gaining weight, your work is not very stressful, आपके पार्टनर्स के साथ भी आपकी अच्छी बनती है, आपका अच्छा सेक्सुअल लाइफ है, ओवरऑल फैमिली में भी ऐसे इनफर्टिलिटी वाला हिस्ट्री नहीं है या कोई ऐसे डिजीजेस वाला हिस्ट्री नहीं है ऑन बोथ द साइड, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आई थिंक जनरली वी टेक कि ये कपल्स को फर्टिलिटी में लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। स्टिल जो सटल साइंस होते हैं वो ऐसे हैं कि आप अपने पीरियड के फ्लोज मॉनिटर करो, बिकॉज मोस्ट कॉमन व्हाट वी हैव सीन इज कि ऐसी कंप्लेन आती है कि डॉक्टर आज से 6 महीने पहले पीरियड का फ्लो आता था 5 दिन, अब है ना मेरा पीरियड का फ्लो 3 दिन हो गया। सो नॉर्मली अगर आपके हॉर्मोन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा इज अगेन रिलेटेड टू द पीरियड्स की
डॉक्टर माय साइकिल्स आर गेटिंग लिटिल शॉर्टन्ड. That means कि previously I was getting my periods at 30 days या 31 days या 29 days, but now I'm getting my periods at 24 days, 25 days. Another warning sign, or I would say yellow flag. Please go and get yourself checked. We ignore all of these क्योंकि लगता है ये तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, अगले महीने ठीक हो जाएगा. ये एक महीना करते करते साल गुजर जाए. Absolutely. And the irony is that if they go to some gynae, Yes. all due respect to gynecologist, हो सकता है कि उनको यही बता जाएंगे भाई सब नॉर्मल है. क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल डेफिनेशन में वो अभी भी नॉर्मल बैठ रहे हैं. But then how do you come to know, sir? Yeah, so you have to first of all, as I told you, कि आपको वो चेंज तो देखना ही देखना है. जी. And then based on change, you need to do few blood work and the sonography, which is definitely give you some idea कि सच में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं. Okay. The most important blood test is something called AMH, All right. which is nothing but egg count. Okay. और most of the cases में वही होता है कि as and when the woman is growing older, Yeah. ये count low होता है, and that causes all these changes to start. Which is why this freezing of eggs is a thing now. Yes. So I've been in the corporate world for the longest time, right? It's been almost 2 decades. एक pattern I have noticed. जो मेरा पहला दशक था ना, first 10 years, we did hear of infertility issues much. But in the last couple of years, I've seen, मेरे अपने colleagues में I have seen the pattern that they are struggling with fertility issues. So are we talking a lot? Are we more woke and open? And that is why ये हो रहा है, ये सच में बदलाव आया है because of, और लोग क्या बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, you're putting too much stress on yourself, it's delayed parenting like you said, beyond 30, 35, 40 also, which is okay. People tend to, think of creating family after 35 and 40, which is absolutely okay in today's world. तो ये सच में changes हो रहे हैं या हम बातें ज्यादा कर रहे हैं? आई थिंक सच में चेंजेस हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा पॉइंट आपने जैसे बताया कि एक तो एज है कि आज से अगर 5 साल 10 साल पहले भी देखा जाए तो एवरेज जो एज पे लोग प्रेगनेंसी प्लान करते थे दैट वाज प्रोबेबली अराउंड 28, 29, 30, जो आज के टाइम पे 32, 33 पे आ गया है. तो एक सबसे बड़ा चेंज तो उधर ही हो गया. दूसरा, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट पर्सन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हो, राइट? एंड रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी, आई थिंक रिसेंटली मीन्स 2021 में पब्लिश हुई थी, और अमेरिका में स्टडी हुई थी, एंड इट वाज डन टू टेस्ट द अल्फा अमाइलेज लेवल. मतलब अपने जो सलाइवा होता है ना, उसके अंदर अल्फा अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, तो उसको टेस्ट किया. एंड नॉर्मली व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड दैट अल्फा अमाइलेज इंक्रीजेस, right? And they found out that the female who were stressed, their alpha amylase were obviously increased. They had difficulty in conceiving. So that is one. So you can understand that stress level आपका बढ़ा है, साथ में आपके fertility issue बढ़ी. This is one. Second thing is, we have as an individual become isolated, but at the same time आपके social culture circles बढ़ रहे हैं. इसका just what I'm trying to tell you is कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर रहे हो ना जो नॉर्मल नहीं. नाइट आउट्स कर रहे हो आप स्मोकिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कर रहे हो, शायद ड्रिंकिंग कर रहे हो, स्लीप का ठिकाना नहीं है, एंड देन दूसरे दिन जाके आपको काम करना है. तो ये सारी चीज़ें भी आपके स्ट्रेस को ऐड ही कर रही है, एंड दे हैव इफेक्ट ऑन योर हार्मोन्स, योर स्पर्म्स, योर एग्स एंड एवरीथिंग, व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम. Which also brings me to one point that आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया. It's everywhere. The information is out everywhere. People are on Twitter, on Instagram, on LinkedIn. जिसको देखो वो barring, of course, people like you, some of the doctors, some of the really, people who are चलता फिरता repository of ज्ञान, उनको अगर साइड में कर दें, every second reel से ऐसा लगता है that I'm going to be a case of infertility. कॉफी ज्यादा पी लो इनफर्टिलिटी हो जाएगा. सोने की साइकिल पे कुछ हुआ, सर्काडियन रिदम कुछ डिस्टर्ब हुआ, ये पक्का कुछ गड़बड़ होने वाला है. जिम नहीं जा रहे हो, उससे भी हो जाएगा. वर्कआउट कर रहे थे, अब बंद कर दिया है, उससे भी गड़बड़ हो जाएगी. स्मोकिंग ड्रिंकिंग, उससे भी हो जाएगी. What is happening? Is it
very overwhelming for everybody to process that information, what works for them, what doesn't. सोशल मीडिया को लेना कैसे चाहिए हमें? 2 पार्ट में आंसर करेंगे इसका भी हम लोग। ओके, पार्ट 1 ऐसा है कि स्पेसिफिकली टू द फर्टिलिटी, रिगार्डिंग द फर्टिलिटी, कि जो चीज़ का ट्रीटमेंट सिंपल नहीं है ना, उसके इलाज बहुत है। समझा ना आपको? तो इसलिए कि आप ये करो तो ये होगा, वो करो तो वो होगा, और ये खाओ तो ये होगा, और एक्स करो तो वाई होगा, इसलिए चलता रहता है। और उसके साथ में जो पार्ट 2 है वो लिंक्ड है कि सोशल मीडिया किसके ऊपर चल रहा है? सोशल मीडिया डर के ऊपर चल रहा है। आप डराओ लोगों को, लोग डरेंगे, एंड दैट इज समथिंग इज गोइंग टू स्प्रेड लाइक फायर, राइट? तो अगर मुझे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो मैं डराऊंगा लोगों को सोशल मीडिया पे, भले ही वो न्यूज़ सही है नहीं है। पर एज ए डॉक्टर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी यही है कि ये जो डर है उसको कम कैसे किया जाए। बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन सम विलेज ऑफ इंडिया वन पर्सन इज लिसनिंग अबाउट इट, और जिसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं कि भाई वो शायद रोज बरोज की लाइफ में कर रहे हैं, और उसके पास क्रॉस चेक करने का कोई जरिया नहीं है, वो मान के बैठ जाएंगे कि भाई अपना तो गया, राइट? सो यहाँ पे हमको यू हैव टू स्टेप इन एज अ डॉक्टर, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ों को आप काउंटर कर पाओ। एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर डूइंग नाउ, सो We're really grateful. या Thank God. या एक जैसा आपने बोला, एक सही इंफॉर्मेशन हमारे पास महीनों सालों बाद पहुंचती। करेक्ट, टेक वायरल फियर मॉन्गरिंग रीड, यस एक रात में मिलियंस। यस यस। सो वही है ना, वायरल होना इजी है, कंट्रोवर्सी स्प्रेड करो या तो गलत बात करो। So, sir, आपने off late, because you're also very popular on Instagram, you're very active on Instagram. We're very grateful to you for that. Thank you. आपने कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड देखा, मिसलीडिंग ट्रेंड वगैरह, जिसको देखकर आपके भी एकदम होश उड़ गए कि ये क्या बकवास चल रहा है? आई थिंक रोज आते रहते हैं ऐसे ट्रेंड, मतलब एक दो हम लोग बात भी नहीं कर पाएंगे। मतलब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा जो मिथ स्प्रेड हो रहा है ना, वो काइंड ऑफ जो गुरुज ऑफ सच सर्टेन फील्ड्स कि जो सच में डॉक्टर्स नहीं है, जैसे योग वाले या तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गर्भ संस्कार वाले, समटाइम्स आई हैव सीन इवन सम फिजियोथेरापिस्ट कि जो सच में ये चीज़ों के साथ डील ही नहीं कर रहे, और वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोगों के साथ में कि आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ अलग ही हो रहा है, मतलब समथिंग इज सो डिफरेंट कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और हमेशा मैंने देखा है कि लोग प्रॉब्लम्स का ही बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन का बात नहीं करता है। तो मजा आता है लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बात करने का। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। तो ठीक है, उसके लिए हम हैं, आप हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नाउ, और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी स्प्रेड हो रही है। तो आपने जैसे बताया कि फॉलोअर्स ऐसे नहीं बढ़े, फॉलोअर्स इसीलिए बढ़े हैं कि दे अंडरस्टूड कि भाई सच जानना है तो इधर चिपके रहो। सबसे अनोइंग रील कौन सी देखी आपने? Do you remember one? No, I cannot remember. I saw one जिसमें ये बोल रहे थे कि अगर मोबाइल की जीन्स में आप मतलब मोबाइल को जीन्स में रखोगे तो it leads to infertility. I don't know if it's Part of it is true. so it's not all that bad. Yeah, What is- part of it is true. So there was a research कि जिसमें Obviously the male was trying to carry the mobile phone, and what they did was they assessed the sperm count parameters in a span of year or 2 year apart, and there was a 30-40% reduction in the sperm count and motility. Yeah, so part of it is true, but What about laptops? same because अभी सारे लैपटॉप जो आते हैं वो उसमें रेज तो होते ही हैं, सो सेम। और लैपटॉप का एक दूसरा डिसएडवांटेज है कि यू आर कीपिंग ऑन द लैप, you're increasing your crotch temperature, specifically for males, because their testes are so much sensitive to the temperature changes. If used for a long period of time, for long years, it can definitely lead to infertility. Oh my God. तो कुछ fear mongering हो भी जानी चाहिए, but from the right sources. So not just for the right sources, but in a right way.
हाउ यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. बस पता है अभी कोई स्मोकिंग करने वाला इंसान आपके कैबिन में आ रहा है तो आपको पता है कि उसको भी पता है कि स्मोकिंग इज बैड, True. राइट? Yes. आपको समझाना पड़ेगा कि उसको कैसे हैंडल करके स्मोकिंग कम कराना है या छुड़वाना है, सो दैट दे एंड अप हैविंग अ सम काइंड ऑफ होप फॉर द रिजल्ट। Infertility same and equal for both men and women. I don't think it is. It's So more it- in women. it's more in women. Yeah. So अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30% is responsible, 30% is by the men. I think around 50% is by the female, and the rest 20% जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन टाइप का इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सो वो जो 50% पार्ट ऑफ द फीमेल है, उसमें भी सबसे कॉमन जो है वो यही है कि एग काउंट कम होना। जो हमने पहले बात किया कि AMH लेवल आप कराओ, तो एग काउंट कम इज नाउअडेज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन of a female infertility. Then comes the endometriosis, tubal factor, fibroids, uterine factors, hormonal imbalance, PCOD, all those things. So most of those words that you used right now, कुछ तो समझ में आया. Endometriosis बिल्कुल समझ में नहीं आया. If कुछ off the topic which थोड़ी सी रोशनी अगर आप उस पे डालें. नहीं, I don't think it is off the topic because endometriosis एक ऐसा प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका यही है कि हमारे पास कोई हिंदी में वर्ड ही नहीं है उसके लिए, Oh my God. राइट? तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जो लोगों को बोलते नहीं आती, है ना? और अगर मुझे बोलते नहीं आती तो मेरे को समझ नहीं आती कि डॉक्टर बात क्या कर रहा है। हाँ, सो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है विच अफेक्ट्स अराउंड 10 to 15% ऑफ द फीमेल, कि जिसमें यूट्रस समझते हैं, राइट? सो यूट्रस के पीछे के भाग में, बिटवीन द यूट्रस एंड द इंटेस्टाइन, काइंड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल ब्लड जमा हो जाता है। Okay. और वो मेंस्ट्रुअल ब्लड टाइम आफ्टर टाइम, मेंसिस आफ्टर मेंसिस, थोड़ा जमा होता रहता है, एंड इट कॉजेज एन एनवायरनमेंट इन एंड अराउंड द यूट्रस, कि जिसके कारण यूट्रस का मोबिलिटी खत्म हो जाता है। मतलब यूट्रस थोड़ा मोबाइल ऑर्गन होता है, वो खत्म हो जाता है, एंड इट्स काइंड ऑफ अपने को चोट लगा और कैसा दुखता है वैसा दुखता है, पर इट इज इन अ मच मोर सीवियर फॉर्म एट द टाइम ऑफ पीरियड्स। तो how we come to know that a person would have endometriosis is, the number one finding is they come with the complaint कि डॉक्टर पीरियड में इतना पेन होता है कि मैं सहन नहीं कर सकती। So it's not the regular cramps that we get, No. because all of us, including you, Yeah. I think second day तो वो cramping होती ही होती है. Correct. तो अपन उसको भी थोड़ा डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं Please, yes. कि नॉर्मल क्रैम्प किसको बोलते हैं और एबनॉर्मल क्रैम्प किसको बोलते हैं, है ना? तो नॉर्मली अगर आपको क्रैम्प आते हैं ना, टिपिकली इट स्टार्ट्स मे बी 1 or 2 डे प्रायर टू योर पीरियड, एंड द डे यू गेट योर पीरियड और द डे आफ्टर तक में वो चले जाएंगे। द मैकेनिज्म ऐसा है कि बिकॉज पीरियड आने वाला है, यूट्रस, द बॉडी ऑफ द यूट्रस tries to contract and get that blood out of the system, and it contracts to an extent that it would get blood out of the system. तो जब तक वो ब्लीडिंग बाहर आना चालू होता है या तो आधा आ जाता है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, एंड देन इट्स लाइक अ फ्लो, तो वो फ्लो होते रहता है, तो यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, सो द पेन ऑल्सो स्टॉप्स। सो टिपिकली starts 1 or 2 day prior to the period and ends on the day 1 or maximum by day 2 of the period is considered as a natural dysmenorrhea. This is the terminology. Sometimes on the 14th and the 15th day also there is slight cramping. That is also. हाँ, तो उसके ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं अपन। It's a different mechanism, okay? Yeah. और एबनॉर्मल पे पहले जाते हैं आप। एबनॉर्मल क्रैम्पिंग किसको बोलेंगे? Okay. तो अगेन एबनॉर्मल क्रैम्पिंग कैन स्टार्ट सेम वे 2 to 3 days prior or maybe on the same day of the periods, but it would not get relieved till you stop bleeding. Okay? एंड दोनों के पेन सिवियरिटी में भी फर्क है। जो नॉर्मल क्रैम्पिंग है वो it is painful, but it is not so painful that you would either faint or you would have vomiting और आपको काम भी नहीं जा सकते या वो सब चीज़ है। While जो एंडोमेट्रियोसिस या समटाइम्स फाइब्रोइड रिलेटेड डिस्मेनोरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, टू एन एक्सटेंड कि शायद आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, टू एन एक्सटेंड कि आपको इंजेक्टेबल मेडिकेशंस लेनी पड़े टू रिलीव द पेन, एंड वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप काम पे तो जा ही ना पाओ और बहुत सारा हर महीने यू मे कीप ऑन लूजिंग योर वर्क।
and it takes really big toll on your mental health as well. Of course, with so much of pain and all. कमिंग बैक टू एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस में जैसे बोला कि यूट्रस के आजू बाजू ये पीरियड टाइप का ब्लड जमा हो जाता है, जिसके कारण यूट्रस की मोबिलिटी कम हो जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स जो साइड के सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिन का ट्यूब जिसको यूरेटर बोलते हैं, वो अपने तरफ खींचने लगता है. And everything gets stuck to the uterus. So this eventually. So that eventually leads to pain, Yes. infertility, Yes. sometimes severe pain while having sex, Okay. pain while passing motion, pain while passing urine, and sometimes too much of menstrual bleeding. Which 6 symptoms है इसके कि जो होते हैं. And the treatment is also based on कि कौन से लेवल पे आपने इसको डिटेक्ट किया है. So it is like a mild, moderate and severe. Mild and moderate sometimes with minimum medications and all hormonal modifications से control हो जाता है, पर severe would definitely require surgical intervention. सर्जरी करके आपको सारा चीज जैसे पहले एनाटॉमिकल था वो ठीक करना पड़ता है, और जहां जहां पर भी आपको वो एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज दिख रहे हैं उसको कट करके बॉडी से बाहर निकलना पड़ता है. देन ओनली थिंग्स कैन गेट better for you. And the earlier you get diagnosed, the better. absolutely. Girls, please go back 2-3 minutes पीछे जाके watch this. This sounded technical, but I think it's extremely important. Just go. Yes. Could you please share one story which has stayed with you of fertility? आपके पास तो तमाम कहानियां हैं. There was a lady, I think she came around 8 years back, and came to me with the file where she had 13 miscarriages. Yeah, 13 miscarriages. And she also had an issue कि she could conceive, but her pregnancy was not going beyond 20 weeks, sometime 18 weeks. तब तक बच्चा जाता था, और तब जाके उसको for whatever reason the baby used to die inside, या some other problem was created and all those things. And then we investigated her, and then we understood that she had negative blood group. Her husband had positive blood group. और हर बार जो बेबी हो रहा था वो मोस्ट लाइकली ऑफ अ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और उसके बॉडी में से ऐसा रिएक्शन बच्चे की तरफ आता था कि बच्चा एक पॉइंट से आगे बढ़ नहीं पाता था. सर ये शुरू में क्यों नहीं पता चला? We can't comment on that क्योंकि इतने मिसकैरेजेस हो गए. That means कि कहीं ना कहीं जो जहाँ पे भी वो गई होगी वहां पे ये चीज शायद वो डॉक्टर के ध्यान में नहीं आया, या तो इट्स जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट टू फॉलो अप टाइप का सिचुएशन हो गया, तो उसके कारण ये द लेडी वाज इन दिस सिचुएशन. सो वी टुक अप द चैलेंज. She got pregnant again, and then we had to manage her pregnancy so that at least she crosses 28 weeks mark. Now why 28 weeks mark is important because 28 weeks के बाद अगर समझो कि आपका डिलीवरी कराना भी पड़ा या बच्चा हो गया, तो वैसे केसेस में बेबी को अपन पेटी में रख के एनआईसीयू में रख के भी बचा सकता है, और आपके हाथ में एक हेल्दी बच्चा आ सकता है. So same story happened in her case. We could pull on the pregnancy till 20 weeks or 8. In this case, we did a procedure called exchange transfusion. Now, you may ask, what is exchange transfusion? तो बच्चा जब मम्मी के पेट में है, तो अराउंड 23-24 वीक्स का जब बच्चा हुआ, तो वैसे केस में we removed whatever blood was there in the system of the baby and transfused the new blood. और वो हमेशा O नेगेटिव टाइप का ही ब्लड होता है, which does not create much of a problem. So what it does is that it removes all the antibodies which is creating problem in baby's blood, and it gives the fresh blood to the baby. And because it gives fresh blood to the baby can grow. Same process we had to repeat total 3 times, and then we could deliver her at around 30 weeks. You did that? Yes. And that baby is probably right now 7 years old. And the good point was that she did not go for another pregnancy after that, because it would have been a very, very difficult pregnancy. But 2 things I learned. Yes. Number 1, there are people who never give up. Wow. So after 13 miscarriages, if you are not given up, then nothing can beat you in life.
I know. Routine miscarriages, no, the emotional pain as well as the physical pain. Absolutely. My God, what a success story is this? Have you also come across a case where you got zero cooperation from the man because वो investigation ही नहीं कराना चाह रहे थे अपना? They have the audacity to say कि नहीं मेरे में तो कुछ नहीं होता. Actually, I've been fortunate enough कि मेरे को ऐसे patients नहीं मिलता है. Because the place where we work and the people who are coming to us, I think they are good people. And they do research. They do research. Work. They agree that yes, there can be a problem in male as well. हाँ. So I think मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अब कम हो रही वाह. कि बहुत सारे मेल्स ना आर अंडरस्टैंडिंग की yeah, they also need investigation. They also sometimes need treatment and they agree for it. This is so heartening. Yeah. And we really hope कि ऐसी situation B और C towns में भी हो. Absolutely. वहाँ पर भी ऐसी medical aid मिल पाए उन्हें. Yeah. It will happen. It will happen. Just a matter of time. Yes. डॉक्टर पता है अभी थोड़े दिन पहले I came across this article and it was a blog, it's proper published article which said कि पपीता और पाइनएप्पल खाने से fertility बढ़ती है और हल्दी वाला दूध पीने से मेल fertility बढ़ती है. I don't know if it's true or not. If you could, delve a little deeper into nutrition and diet pattern. सबसे पहले तो तीनों चीज का आंसर नो है, तो इसको साइड में हटा देते हैं. Yes. है ना, पर इसको थोड़ा साइंटिफिकली ब्रेक डाउन कर लेते हैं. कोई भी कपल या कोई भी पर्सन हेल्दी हॉर्मोन्स या हेल्दी फर्टिलिटी के लिए बेसिक 3 चीजें चाहिए. सबसे पहला है कि प्रोटीन इंटेक सही होना चाहिए. मतलब आपका जो खाना है उसके अंदर एटलीस्ट 70% जितना या 60% जितना आपको प्रोटीन चाहिए, 20% जितना आपको कार्ब चाहिए और 15% आपको फैट्स भी चाहिए, क्योंकि आपके फैट ही आपके हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं. तो एक सिंपल तरीके से अगर समझेंगे तो अगर मेरा वेजिटेरियन डाइट है तो उसके अंदर मेरे को 4 रोटी चाहिए, 1 कटोरी दाल चाहिए, 1 कटोरी पल्सेस चाहिए, 1 कटोरी सब्जी चाहिए और साथ में मैं थोड़ा घी भी लूंगा so that my fat requirement is fulfilled. According to me, this is the most balanced diet. Nice. Absolutely Indian थाली जो हमें घर में परोसी जाती है. आपने इतना कुछ बताया which is very very important. और अगर आपको समरी देनी है ऐसे couples के लिए who are wanting to go for treatment and are on a lookout of a good clinic for a good doctor, what are those 1, 2, 3, 4, 5 points? सबसे पहला तो वर्ड ऑफ माउथ है कि नहीं. दूसरा, आपको आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी जात का रेफरेंस मिला है कि नहीं. तीसरा, सोशल मीडिया पे या गूगल पे उनके कोई भी रिव्यूज अवेलेबल है कि नहीं. चौथा, अगर आप क्लिनिक के अंदर एंटर करते हो तो रिसेप्शनिस्ट आपको कैसे ट्रीट कर रही है, ज़्यादा पैसों की बात हो रही है और काम की बात कम हो रही है, वैसा है, चौंक जाइए. पांचवा, आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे डॉक्टर कौन है. आप क्लिनिक पे गए हो, तो क्लिनिक के नाम से गए हो, आपको पता ही नहीं कि डॉक्टर कौन है, मत जाइए. एंड छठा, वो भी इंक्वायर करिए कि भाई मेरा ट्रीटमेंट कौन डॉक्टर करने वाला है या हर बार कोई डॉक्टर मेरा चेंज होने वाला है. तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं. एंड आई थिंक वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर इज कि जो आपको ट्रीटमेंट के बजट दिखाए जाते हैं वो बजट में कोई भी हिडन कॉस्ट है कि नहीं. अगर आप वो बताते हैं कि नहीं कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, देन आप समझ सकते हो. अदरवाइज प्लीज बी अवेयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember. Okay. So we were discussing about this. It was just a touch and go. But me कुछ याद आ रहा है which I wanted to share with you. The other day I was at a party and मेरे बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे. वो सब पता है क्या बात कर रहे थे कि is it a good time for them to get their eggs frozen or not? And they are seriously considering it. वो सुनकर के ऐसे लगा that people don't know about it, but they want to take the plunge. For such people, what do you have to say? यस. सो आज के साइंस में एक वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से अमेजिंग एडवांसमेंट इज एग फ्रीजिंग. क्यों? क्योंकि आप आपकी अपनी बायोलॉजी एक सर्टेन टाइम पे फ्रीज कर सकते हो. रीज़न ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे फीमेल का एज बढ़ता है वैसे वैसे उनका एग का काउंट कम होता है और जैसे जैसे एग का काउंट कम होता है वैसे वैसे प्रेगनेंसी रुकने की पॉसिबिलिटी कम होती है. नाउ इसको आज के सिनारियो के साथ जोड़ते हैं.
कि आज एज यू सेड कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी फीमेल्स who are working, they're working hard. Now we see that so many females are climbing ladders of corporate life, and not just corporate, in medicine and engineering, everywhere you see that there are females who are working, कि जो काम को अभी ज्यादा फोकस कर रही है कंपेयर टू द एक्चुअल बेबी एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वैसे केसेस के लिए स्पेसिफिकली एग फ्रीजिंग इज एन अमेजिंग थिंग. नो, व्हाट इज एन एग फ्रीजिंग इवेंचुअली? तो क्या होता है कि आपके ओवरीज में से जो एग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिखते हैं, मतलब एक साइकिल में जो दिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्यू इंजेक्शंस वी ट्राई टू ग्रो दोस एग्स, और उनको ही हम लोग बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं बिफोर दे रिलीज इनसाइड. जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अ आईवीएफ ओनली, पर ये आईवीएफ नहीं है. और एक बार बॉडी में से बाहर आया तो उनके क्वालिटी असेसमेंट्स होते हैं, और बेस्ड ऑन द असेसमेंट उनको फ्रीज करके रख दिया जाता है. अब बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि यार एक बार फ्रीज किया तो मतलब कितना टाइम रख पाएंगे? तो उसका आंसर ऐसा है कि कोई टाइम का अपर लिमिट नहीं है. Why? This is good actually. Yes. उसका रीजन ऐसा है कि एक बार एग को फ्रीज किया गया, उसके बाद आप जितना टाइम उसको रखना चाहो उतना रख सकते हो. इट्स जस्ट दैट एवरी क्लिनिक वुड हैव सर्टेन अमाउंट टू बी पेड, कि वो उस हिसाब से आपके 1 साल, 5 साल, 10 साल जितना भी आप रखना चाहो वैसा आप रख सकते हो. एंड दूसरा लोगों को जो क्वेश्चन होता है कि क्या डॉक्टर एग फ्रीज किया मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो उसका आंसर ऐसा है कि एग फ्रीजिंग इज 50% ऑफ द ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी मेल पार्टनर के स्पर्म नहीं है. समझो कि आप अनमैरिड गर्ल हो, या तो आप ऐसी एज पे हो कि आपका अभी डिसाइडेड नहीं है कि भाई मैं प्रेगनेंसी रखूंगी कि नहीं रखूंगी. तो वैसे केसेस में एग फ्रीजिंग करने के बाद जब फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी रखनी है, and you have tried naturally and all natural ways of pregnancy planning has not worked for you, this can serve as your plan B at that point of time. और तभी obviously मेल पार्टनर लगेगा. जो एग फ्रीज किए हैं उनको डीफ्रीज करना पड़ेगा, उनको आईवीएफ की मदद से ही फर्टिलाइज करना पड़ेगा, और उसमें से जो बेबी या एम्ब्रियोस फॉर्म होंगे उसको आपकी यूट्रस के अंदर डाला जाएगा, जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. So this is the process. So egg freezing is one part of the process, and conceiving is also another part of the process which you should be aware of. Absolutely. So it's actually very visionary process. Yes. And very empowering also, especially Yes, for yes. some women. हर बार शायद काम नहीं होता है, कोई और reasons हो सकते हैं, personal reasons हो सकते हैं, and absolutely without any judgment, I think this is an extremely empowering medical advancement that we have today. एक और मेरे पास सवाल दिमाग में आ रहा है that एक कपल को they were wanting to conceive मगर वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं. अब होता क्या है ना, वो बहुत इंतजार करते हैं, उन्हें लगता है हो जाएगा, लोग हैं आसपास के वो समझाते रहते हैं डोंट वरी, द थिंग्स हैपन लेट, मिरेकल प्रेगनेंसीज देखो, कितने सालों बाद दिस पर्सन गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी, तो रुको. अब इसमें क्या है, इस रुकने में बड़ी कंफ्यूजन है. कब तक वो थ्रेशोल्ड होना चाहिए जब तक एक कपल इंतजार करे? ऐसा तो नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट ही डिले हो रहा है. तो इसका आंसर ऑलरेडी डिफाइंड है. इट्स डिफाइंड बाय WHO कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ट्राई कर रहे हो फॉर ईयर, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनफर्टिलिटी, और आपको कोई भी जात की हेल्प लेनी जरूरी है, या तो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है. सेम चीज अगर फीमेल की एज 34 क्रॉस कर जाती है तो गोज फॉर 6 मंथ्स. ओके, तो 1 साल अगर आप फीमेल की एज 34 के पहले है, और 34 की 34 के पहले है मतलब 34 से यंग है, और 34 से ओल्डर है तो मतलब 6 महीना. दिस इज समथिंग विच एवरीवन शुड कीप इन देयर माइंड. Wow, this was information. Wow. You said that almost 30% male infertility cases हैं. अब females को तो पता चल जाता है, आपने भी इतने indicators दिए. How would male counterparts get to know that there could be an issue? सो थोड़े फिजिकल क्राइटेरिया है. फिजिकल क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी. सेकेंड थिंग इज कि कोई भी जात की फिजिकल एक्टिविटी ना होना. थर्ड थिंग इज देयर हैबिट ऑफ आइदर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शीशा और ऑल, या तो कोई भी जात का सब्सटेंस अब्यूज. चौथी चीज है कि वर्क स्ट्रेस या फैमिली स्ट्रेस या बहुत सारे स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं. एंड जब हम लोग उनको सच में इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं,
तो सीमेन एनालिसिस में भी यू अंडरस्टैंड कि जो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी या जो स्ट्रक्चर स्पर्म का नॉर्मल होना चाहिए जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ये पैरामीटर्स सही तरीके से नहीं है. सो दीज आर ऑल पैरामीटर्स और इंडिकेटर वेयर विच वी कम टू नो कि ये मेल इनफर्टिलिटी का केस है. आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, इतनी सारी कहानियां बताई, बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बताएंगे, यस. क्या कोई केस ऐसा आपके सामने आया जिसको देखकर आपको भी लगा कि ये तो नहीं रहेगा, एंड लाइक यू वर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, बट देन लाइक यू सेड होप? यस. हाँ, एक केस है ऐसा. एक कपल आया था. शी केम फ्रॉम आई थिंक एम्स्टर्डम, इंडियन ओरिजिन पर रहते वहाँ पे थे. और जब इधर आए तो ऑलरेडी यूरोप में कुछ 6 टाइम्स आईवीएफ कर चुके थे और सारी ट्रीटमेंट कर चुके थे. मतलब जो भी पॉसिबल एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट आप सोच सकते हो वो सारे कर चुके थे. तो व्हेन दे प्रेजेंटेड टू अस, सो वी थॉट कि ये केस में और क्या ऐसा करेंगे कि हमारे पास कोई रिजल्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा. बट कपल वॉज वेरी पॉजिटिव कि नहीं डॉक्टर आप कुछ करो, कुछ नहीं तो सेम चीज रिपीट करो, पर करो. हमने ऐसा सुना है कि हो यहाँ पे हो जाता है तो हो जाएगा. तो then we just navigated case a little different, right? So there is something called immunological factor in infertility. Now what is an immunological factor? कि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियो जब फीमेल के यूट्रस में जाता है तो उसके अगेंस्ट में फीमेल का यूट्रस एक जात का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और वो रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एंड देन द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट. बट अराउंड 1 to 2% फीमेल्स ऐसी होती है कि जिनको एक स्पेसिफिक एम्ब्रियो जब बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स आता है वो हॉस्टाइल रिस्पॉन्स होता है. And because that hostile response, no matter how good embryo comes to the uterus, the female would not accept that embryo, and she would end up with no pregnancy. So we did one specific test in this couple, जिसको HLA typing बोलते हैं. Now what is HLA typing? I will tell you. कि हमने सुना होगा कि किसी का किडनी मुझे लेना है, तो जिसको ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं, तो ऑर्गन डोनेशन करने के लिए भी ये टेस्ट करना था. तो जिसमें एक्चुअली दोनों पार्टी का जेनेटिक्स मैच किया जाता है कि कितना परसेंटेज जेनेटिक्स मैच होता है और कितना परसेंटेज जेनेटिक्स मैच नहीं होता है, और उसके हिसाब से डिसाइड होता है. तो प्रेगनेंसी होने के लिए आइडियली जेनेटिक्स मैच नहीं होना चाहिए, या तो जितना ज्यादा परसेंटेज मैचिंग होगा उतना प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम और मिसकैरेज चांसेस ज्यादा, राइट? So this is a very simple understanding. It's a complex subject. So we did that test and we found out there was some matching in them. So we counseled them कि भाई ये केस में only way to achieve the pregnancy is that we have to replace one of the partner's gamete. माने या तो आप egg donor लो या तो आप sperm donor लो. Even though everything is fine with you, right? And then eventually they agreed for sperm donor. We changed the sperm donor. And then she conceived. I think she has already delivered a baby out there. But this was the case where even initially I thought कि यार कुछ नहीं हो पाएगा. Wow, how rewarding does that feel? तो थोड़ा अपन RH इनकॉम्पेटिबल मतलब नेगेटिव मदर और पॉजिटिव फादर वो क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं होता. तो क्या होता है कि जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उनके पेट में जो बच्चा है अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी का जो ब्लड होता है वो मदर के ब्लड में थोड़ा मिक्स होता है. एंड बिकॉज दैट हैपेंस, मदर का ब्लड बेबी के ब्लड के अगेंस्ट में एक रिएक्शन क्रिएट करता है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन या RH इम्यूनोग्लोबुलिन या RH एंटीबॉडी बोलते हैं. अब वो बच्चों को कुछ नहीं होता, जो पहला वाला बच्चा है उसको कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो उसका ब्लड मदर को देके चला गया बाहर. पर समझो कि हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जब वो नेक्स्ट टाइम कंसीव होएगी सेम सिनारियो है, शी इज नेगेटिव, हस्बैंड इज पॉजिटिव और जो बच्चा है वो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है. तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी मदर के ब्लड में क्रिएट हुए थे एट द टाइम ऑफ प्रीवियस डिलीवरी, विच विल पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड इट विल
start attacking the baby's blood. And बेबी के ब्लड सिस्टम में उसका ब्लड ब्रेक होना चालू हो जाएगा. एंड इवेंचुअली बेबी वुड डेवलप समथिंग कॉल्ड एनीमिया. मतलब उसका ब्लड कम हो रहा है. इट विल रीच टू एन एक्सटेंट कि पूरा बॉडी स्वेल हो जाएगा. एंड द एक्सट्रीम केसेस में बेबी का पेट में डेथ हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजी वर्क्स. सो इसका प्रिवेंशन बहुत सिंपल है. हाँ, तो अगर मदर का डिलीवरी होता है, फर्स्ट डिलीवरी, सेकेंड डिलीवरी या वॉट एवर डिलीवरी के विद इन 72 आवर्स में एक स्पेसिफिक इंजेक्शन आता है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं. वो मदर को अगर दिया जाता है तो वो जो एंटीबॉडी टाइप का रिस्पॉन्स है वो मदर के ब्लड में नहीं बनता है, या तो वो बनता है पर उसको वो नलीफाई कर लेता है, सो दैट इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इट एक्चुअली प्रिवेंट्स दिस प्रॉब्लम. तो एक सिंगल इंजेक्शन कैन रियली सेव यू, बट यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर अबाउट इट. Yes, I think that's extremely, extremely important to us. A lot of people would be watching this episode. A lot of them would be struggling as well. Yes. If there's one message that you want to leave with them, वो एक message क्या होगा? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डोंट लूज होप. क्योंकि अगर आप होप लूज कर लिए दैट मीन्स गेम ओवर है. और अगर आप होप लूज नहीं किए तो आपका कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड यू विल गेट इट. क्या बोलते हैं? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नोट पर एक क्विकली रैपिड फायर कर सकते हैं आपके साथ कुछ परमिशन? Now? Yes. Very crisp answers. Yes. I'll ask you and then Yeah. you go ahead. One word answers. One word to doctor. One sentence answers. I know. Let's see where. Yes, let's do it. Yes. On your mark, get set, Go. yes. The effect of these things on fertility. Tea and coffee. Very minimum. The dose wise 1 to 2 cups of tea per day is fine. Same way 1 to 2 cups of coffee per day is absolutely fine. Effect of age. Oh, the great. As we already established that for female 32 and beyond, and same for the male is 40 and beyond. Alcohol. In moderate quantities, no. But if you're having 2 to 3 times a week or more frequently than then definitely yes. Too much of gymming. No. Using laptop. Yes, I think we already talked about it. Increases your crotch temperature and it has negative impact on your fertility, specifically for males. Similarly, putting mobile in your jeans pocket. Absolutely. While you're getting through the IVF treatment, traveling, Absolutely not a problem. You can travel wherever you want. driving, Absolutely you can. one lifestyle change that genuinely improves fertility. Sleep. What is the recommended pattern? 8 hours of sleep, at least for both the partners. I would say 8 hours of sound sleep. One thing that you feel every husband should know about a woman. I think every husband should know that what his wife really wants. One thing that you would want to change in the society around us. That stop treating infertility as taboo. The one question that patients are very embarrassed to ask, but they should ask it. They should definitely ask about how frequently they should have sexual intercourse. And one song you wanted to dedicate to your patients. I think रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. Aha! How nice is that? Thank you so much, Dr. Shaw. Thank you so much. This is one of the most heartening conversations, and I do not say this only from the capacity of being the host of the show, but also from the fact that as a layman, as a woman, as somebody who knows little about fertility and IVF, this is so informative. Thanks a lot. I had equal fun. And I hope the message spreads loud and clear. And before we say goodbye, this is for that one listener who wanted to hear this today. Maybe you're struggling a little. Maybe you have waited for weeks, months, maybe years. Maybe you have come across conversations and smiled when actually you were hurting inside. ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है that you're not alone, you're not broken, and that you're about to bring life into this world, and you must do it with a lot of compassion. So please be kind to yourselves, because sometimes the most beautiful chapters come at the end of the book. So be kind to yourself, and I hope this podcast left you with clarity, hope, resilience, and little comfort. Thank you so much.